ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤ ਭਗਤੀ, ਤਤਵ ਗਿਆਨ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों,
आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। यह कहानी एक जीवन के बदलाव की है जो आपके दिल को छू सकती है। छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा गांव में एक समय एक सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, अजर जी। उनका जीवन एक आम रास्तों पर चल रहा था, लेकिन उनकी सोच कुछ अलग थी। उन्होंने कबीर साहिब जी की साखी सुनकर सोचा कि खुशी और सुख का राज क्या है। इस खोज में उन्होंने गायत्री परिवार को जोड़ा और वहां कुछ आध्यात्मिक बातें सीखी। फिर अजर जी ने अपने नए घर का उद्घाटन अपने परिवार के साथ करवाया, लेकिन एक शुभ अवसर के बाद भी उनके बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया। यह घटना उनके लिए बहुत दुख की बात थी। ऐसे में उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में पता चला। संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन ने उनके जीवन को बदल दिया। अजर जी की पत्नी को पित्त की थैली में समस्या थी, जो संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने से तुरंत ठीक हो गई। खुद अजर जी का भी एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से उन्हें जल्दी ही आराम मिला। संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश हमेशा यही होता है कि असली सुख और शांति खुद अपने अंदर से मिलती है। क्या हमने अपने जीवन में यह बात समझी है? क्या हम अपने दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए उनके ज्ञान को अपना सकते हैं? अजर जी की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के मार्ग को अपनाते हैं, तब हमारी जिंदगी में शांति और खुशी आती है। क्या आप अपनी जिंदगी में इस बदलाव को अपनाना चाहेंगे? क्या आप भी अपनी समस्याओं का हल ढूंढना चाहेंगे? आज ही अपने जीवन को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से रोशन करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। तो आइए अब सुनते हैं अजर दास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजर दास है जी। अजर दास जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ जी, जिला बालोद, ग्राम बिटाल का रहने वाला हूँ। अजर दास जी, आप क्या काम करते हैं? जी मैं शिक्षकी व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं आज रिटायरमेंट हो चुका हूँ। अजर दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? जी मैंने 6 सितंबर 2013 को गुरु जी की शरण में आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? गुरु जी के शरण में आने से पहले मैं कबीर पंथ से ही जुड़ा हुआ हूँ, दामाखेड़ा पंथ से, क्योंकि हमारा परिवार पहले से ही उसी पंथ से जुड़े थे और उसी के पंथ में जो चौका आरती करते थे और जो भी वहाँ संध्या आरती होती थी उसी से मैं जुड़ा रहा। क्योंकि हम शिक्षकी व्यवसाय से जुड़ा था, प्राइमरी स्कूल के मैं हेड मास्टर रह चुका हूँ, तो बच्चों को मैं पढ़ाता था कबीर के दोहे। तो उसमें एक बहुत अच्छा एक साखी था कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तादुक काहे को होए। तो मेरे मन में बार बार ये प्रश्न आता था कि सुमरन शब्द है और सुमरन माने याद करना, तो मैं किस बात को याद करें और जिसे सुमरन करने से ही सुख मिलेगी, और वो सुमरन किस बात की है, क्या मंत्र है वो, ये मेरे मन में बार बार एक जिज्ञासा पैदा होता था सर जी। तो मैं कई साधु संतों से मैं पूछता था, मगर कहीं से उत्तर मिलता ही नहीं था। तो धीरे धीरे मेरे मन में उस पंथ के बारे में एक निराशा भाव आ गया, और उसी दरमियान एक गायत्री परिवार का उद्भव हुआ। उस गायत्री परिवार में उसमें सुमरने की एक पद्धति थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इनको सुमरन करने के लिए जो गुरुदेव थे वो बोला करते थे। तो हम लोग उससे जुड़ गए, नैष्ठिक साधक बन गए, केवल सुमरन शब्द से ही। सुमरन, ये शब्द सुमरन करना, इससे हमें सुख मिलेगा। इसी कारण से मैं उस गायत्री परिवार से जुड़ गया और वहाँ एक से एक संगीत, एक से एक प्रेरणा गीत, एक से एक भक्ति गीत उसमें चलाते थे वो लोग। तो उससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता था। ऐसे ही वहाँ यज्ञ पद्धति भी होती थी, यज्ञ से हम लोग कराते थे, अन्य गाँवों में जा जाकर प्रेरित भी करते थे। या एक ऐसी घटना मेरे जीवन में आया सर जी कि एक नया घर मैंने बनवाया। नया घर के उद्घाटन में बहुत चाव से, बहुत माने लगन से मैंने गायत्री मंदिर के जो परिवाजक होते हैं, जो यज्ञ संपन्न करते हैं, उनको मैं बड़े आदर्शपूर्वक बुलाया और कहा कि परिवाजक जी, हमारे यहाँ नया घर है, उसमें आप यज्ञ बढ़िया विधि
पूर्वक कर दीजिए, जिससे कि हमको सुख शांति मिलेगी और हमें घर अच्छा लगेगा। किसी प्रकार की कोई हानि यहाँ ना हो, किसी जीव जंतु से किसी प्रकार की हानि ना हो। ऐसा करके बहुत चाव से हमने यज्ञ संपन्न करवाया सर जी। मगर यज्ञ संपन्न हुआ, भंडारा हुआ बढ़िया, सब लोग अपना खुशी खुशी से। मैंने कहा अपने बड़े लड़के से, नई मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल में परिवाजा को छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि परिवार जो गायत्री मंदिर था वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था, उनको छोड़ना था। तो वो जैसे ही मोटरसाइकिल से छोड़ने गए, लगभग 3 किलोमीटर गए होंगे, रास्ते में कुत्ता आ गया और कुत्ता को बचाने के चक्कर में दोनों गिर गए। परिवारजों को भी चोट आई, मेरे बच्चे को भी चोट आई, मोटरसाइकिल में भी बहुत सारा नुकसान हो गया। तो जब घटने के बारे में मुझे जानकारी हुई तो मैं बहुत ही मायूस हो गया। मैं क्या बताऊं सर जी कि मैं गायत्री माता से ही ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा सुख शांति मिले, किसी प्रकार से आपदा से बचाए। मगर माता की हम भक्ति किए, यज्ञ किए, इसके बावजूद भी ये घटना घटित हो गई। ये तो मेरे मन में बहुत बड़ी एक परिवर्तन जैसा लगा। एक घटना से मैं बहुत ही विचलित हो गया मैं, और सोचने लगा कि वास्तव में गायत्री माता है कि नहीं। ये अपने बच्चों को भी मतलब परेशान करके रखती है, तो क्या मतलब ऐसे भक्ति करने से। और वहीं से मेरा मन उचाट हो गया इस लाइन से। और एक दिन अचानक टीवी के चैनल बदलते बदलते, क्योंकि मैं आध्यात्मिक लाइन से जुड़ा ही हुआ था, तो चैनल बदलते बदलते एक दिन गुरु जी का सत्संग चल रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी का। क्योंकि मैं जानता नहीं था संत रामपाल जी महाराज को। 2013 के आसपास छत्तीसगढ़ में बहुत कम इनका प्रचार प्रसार था। तो उसमें एक कबीर सागर के बारे में उल्लेख था। चूँकि मैं कबीर पंथ से जुड़ा हुआ था दामाखेड़ा से, कबीर सागर के उसके चौपाई से, उनके साखी से, उनके शब्द से चूँकि मैं परिचित था, कबीर साहब से ही मैंने मान लो वो शब्द लिखा है, तो एक मन में एक अलग भाव आ जाता है। तो वो कबीर सागर के बारे में एक उंगली से गुरुजी दिखा रहे थे, तर्जनी उंगली से वो शब्द का वो रेखांकित कर रहे थे, उनको शो कर रहे थे। और उसके इस उंगली में बहुत चमक थी, एक अलग टाइप का चमक। तो वो मुझे एक मन को सोचने लगा कि ऐसा कौन सा चैनल है ये जिसमें इस प्रकार की कबीर साहब के बारे में बता रहे हैं। सभी चैनल वाले तो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये दुर्गा के बारे में बताते हैं और भगवत गीता के बारे में बताते हैं, मगर बहुत कम ऐसी चैनल तो हुआ ही नहीं है जो कबीर साहब के बारे में बताएं। फिर लगातार मैंने 1 महीने तक के उनके सत्संग का लाभ उठाया और मुझे अच्छा लगा। वास्तव में ये ज्ञान बहुत ही ऐसा ज्ञान तो एक अनोखा ज्ञान है, आज तक ये ज्ञान मिला ही नहीं है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही हम लोग सीमित थे, और गुरुजी तो बहुत ऐसा ज्ञान बता रहे हैं कि आज तक ये ज्ञान हम लोग अछूते रहे। और मैंने सोचा कि अब बिल्कुल जाए। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम, तो एक मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैंने संपर्क किया और उसके बाद रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताए कि ऐसा ऐसा एक संत है हरियाणा में, उनसे चला जाए, बहुत अच्छा ज्ञान है उनका। मैंने उनके सत्संग टीवी के चैनल के माध्यम से श्रवण किया है। तो वो भी तैयार हो गए और हम लोग बरवाला पहुंच गए। बरवाला में पहुंचते ही हमने संत रामपाल जी के आश्रम में नाम दाम लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर जी। पहले तो हमें ये ज्ञान का जो हम जानते नहीं थे, हम यहीं तक स्वर्ग और नरक तक ही हम लोग जानकारी थी, और इस ज्ञान को मिलने के बाद हमें और मरने के बाद भी और कुछ है, इसका हमें एहसास हुआ। और ये भी पता चला कि मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, मनुष्य जन्म में ही हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, और किसी योनि में मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बहुरन लागे डार। ये जो अमूल्य मनुष्य जन्म की जो कीमत है, वो गुरुजी के शरण में आने से ही पता चला। और सर जी, मेरी पत्नी, नाम तो वो लिया नहीं था, मैंने नाम लिया था,
और उनकी अचानक दर्द हो गई। दर्द होने से हमने डॉक्टरों के पास दिखाया। डॉक्टरों ने चेक करके कहा कि भाई इसमें गांठ है और इस गांठ को इनका बायोप्सी करना पड़ेगा। और वहाँ बहुत बड़े एक भिलाई में बहुत बड़ा पैथोलॉजी है, सुधीर पैथोलॉजी, वहाँ जाके ले जाना पड़ेगा। तो वहाँ से निकाल के दिए। वहाँ जाने के बाद वो लोग भेजे बॉम्बे और वहाँ से फिर उनका चेक करके आए तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लोग ले जाते थे तो चूँकि मैं गुरुजी के नाम दाम ले चुका था तो मैं सुमरन करता था, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक, यही मेरा एक प्रार्थना था। तो वास्तव में वहाँ से जब रिपोर्ट आता था उसमें कुछ मिलता ही नहीं था, मगर दर्द, चूँकि दर्द आराम होता ही नहीं था। फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास दिखाया तो वो भी बायोप्सी के लिए वहीं भेजते थे। वो भी वही था कि वो मेरा वही प्रक्रिया था, हे बंदी छोड़ दया करना मालिक। ऐसा ही 3 डॉक्टरों से बायोप्सी कराया, फिर भी वो उनका डॉक्टरों का ये मत ये रहा है कि ये कैंसर का संभवतः कैंसर हो सकता है, ये समझ के लोग बायोप्सी कराते थे और मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं आता था। अंत में जब तीसरा डॉक्टर के कराने के बाद उनको पता चला कि इसमें कैंसर की जैसा कोई लक्षण नहीं है, तब एक जो बहुत खतरनाक होने की संभावना थी वो केवल पल्स उसमें एक बदल गया और उसको निकालने के बाद उनकी दर्द धीरे धीरे शांत होता गया। और ऐसा करने से आज भी वो किसी प्रकार की उस खतरा नहीं है और बस स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही है। मेरी पत्नी की यह एक बहुत बड़ी लाभ हुई। मेरी लड़की है, मेरी लड़की 11 साल की उम्र में उनको एक हार्ट प्रॉब्लम था, बचपने से हार्ट प्रॉब्लम था, मगर 11 साल की उम्र में उनको ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी मद्रास में, जो आजकल तमिलनाडु बोलते हैं, वहाँ पे तो उस समय तो ठीक थी। आज उनको करीब लगभग 39 साल व्यतीत हो गया है, मैंने ओपन हार्ट सर्जरी हुए, मगर फिर भी अब कुछ फिर उनके लक्षण दिखने लगे हैं। और मालिक से मैं बार बार अर्जी लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हे बंदी छोड़, आप ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अगर कोई इतने बड़े हॉस्पिटल हार्ट का सर्जरी होने के बावजूद भी अगर कुछ और होता है तो आपकी जिम्मेदारी है मालिक, आप ही उसको संभालेंगे, आप ही बचाएंगे, यही मेरा प्रार्थना होता है। मगर आज वो लड़की ठीक है और स्वस्थ है। अब नाम ले चुके हैं, दोनों भक्ति कर रहे हैं और गुरु जी के शरण में हैं। और एक लाभ मेरे जीवन में हुआ है सर जी, हम लोग मेरे पास एक छोटी सी कार है, उस कार में हम लोग भगत भाई भी थे और मेरे ससुर जी थे, उनके साथ हम लोग एक दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली एक हम निकट का शहर है, वहाँ पे और एक पीछे से कोई कार वाले आए, क्योंकि ड्राइविंग मैं कर रहा था, पीछे से कार वाले इतने धड़धड़ाते से आए और वो सीधा मेरे ड्राइवर साइड को ही ठोक दिए और ठोक करके वो टक्कर होके स्वयं वो कार जो है कम से कम 20 गज आगे वो सड़क के दूसरे साइड में निकल गई, वो खड़ी हो गई और हमारी गाड़ी चल रही थी। मैंने बोला ये इतनी मैंने कैसे, हम तो अपने साइड में हैं भाई, और ये कैसे हमको ठोक के चली गई, ऐसा करके। अब जब हम लोग खड़े हुए और वो गाड़ी वहीं पे एक्सीडेंट होके चली गई, गिरे जैसा हो गया था। और हम आके जाके हम जहाँ पे रुकना था वहाँ रुके, तब वो देखे उतर के तो ये पूरा ड्राइवर साइड का जो फाटक है वो पूरा चपट गया था और हल्का सा मुझे, क्योंकि कुछ ना कुछ खिड़की खुला रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टच हुआ था, ज़्यादा मुझे एहसास नहीं हुआ। वो भी वास्तव में उस दिन ड्राइवर का मरना ही था, इतनी बड़ी ठोकर थी कि उस ठोकर को गुरुजी ने बहुत ही आसान कर दिया। और मुझे आज याद आता है, ये वाकई गुरुजी की बहुत बड़ी मुझ पर कृपा हुई है, मुझे एक जीवन दान मिला है, ये मुझे एहसास होता है आज। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में एक धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज से जो अनुयायी जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं। आप एक हेड मास्टर हैं, आपको देख कर के ऐसा नहीं लगता है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े होंगे? सर, ये बातें कहाँ तक सही हैं? अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है सर जी। गुरुजी के ज्ञान में प्रबलता है, उसमें उनके ज्ञान में इतनी माने एक शक्ति है
कि उसमें अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, उनके ज्ञान ही अनोखी है। वो ज्ञान समझने के बाद उसमें जरा भी कहीं गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल साफ क्लीन पारदर्शिता है उसमें। जरा भी उसमें कहीं हमने उनका देखा देखी जुड़ गए या उसने हमारे वो बड़ा साहब जुड़ गए तो हम भी जुड़ जाएं, ऐसा वाली जरा भी इसमें किंचित मात्र भी जगह नहीं है। बिल्कुल ज्ञान एकदम उच्च कोटि का है, क्वालिटी है इसमें, और जिस क्वालिटी ज्ञान को समझ लिया उनका तो बेड़ा पार सुनिश्चित है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की जुड़ने का कई माध्यम है आज के तारीख में, और सरल माध्यम है। आज कई ठो चैनल में गुरुजी के सत्संग चलते हैं, और उसके नीचे सत्संग में स्क्रीन में एक पीली पट्टी चलती है, उसमें कई ठो कांटेक्ट नंबर है नाम दीक्षा लेने का, और उससे आप कांटेक्ट करके कहीं निकट के नाम दीक्षा केंद्र का एक लोकेशन बता दिया जाएगा, और उसमें आप नाम दीक्षा केंद्र बड़े आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा और सोशल मीडिया के तहत कई ठो ऐप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसमें भी गुरुजी के सत्संग चलते हैं, गुरुजी के कई ठो उसमें ज्ञान की बातें हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उसके विवाह के लिए लड़की आगे बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी है अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है। फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी, मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोच कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत शिखर में थी। अब लड़की बोल रहा क्या, बेचारी सब्र का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसी चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। नरसिंह वो कहने लगे, उस शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़ इज्जत हो चाहे बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी, अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया। किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो घर से मांगी वस्तुधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो।
किसी से एक बैल मांगा, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह पक्का दिख ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के वह गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया। और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूँ। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण, आरी भी, ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यों बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी फिर न्यों बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली,
जब भगवान बने गढ़वाला जी, भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई में हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों पर नाम भाई में हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई में हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। अपना तो इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया, इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा की उदारते, यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो कहने का बात यह है कि नरसिंह जी जब न्यों बोले, नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरी तछानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं, जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहाँ तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले, तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा। अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, कुछ उधार ले जाता था उससे वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बनेगी, भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया बिजनेस में बहुत गना, और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भाई मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी, आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गाँव में चलो।
आपको कुछ ठेके पर, कुछ में अपनी जमीन बहुत है वैसे दे दूंगा और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा, उसको उसको जमीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा तो वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि ये 10 एकड़ जमीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपये लेता था, गले में तो उठाता था। हर वहाँ चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है। और डेली लिख रहा है, बाई वाले ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 5, 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके। और अन इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूं बीजे, गेहूं का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपये का बीज गेहूं का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूं बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया। उसको पता था नहीं प्रोसेस का। वो सारे में गेहूं उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा। और वो माथे बात लाए बैठा। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखूं कैसी लगी है। बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है? कहने लगा भाई मित्र, मैं तो जाऊँ अपने घर में। क्या बोला, फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसमें 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूंगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूं होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूं भी बनेंगे कैसे, इसमें गेहूं तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूं तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूं था कि वो उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अक्यों भी ऐसे बोल रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था, पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए गेहूं, 40 मन गेहूं डाले थे 1 एकड़ में, और 40 किलो, और फिर वहां निकले काफी 20-30, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूं पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूं थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो। बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहाँ से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है, उन अपने भाई बहनों की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, साच कहूं तो जग माने नहीं, साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कही ना जाई हो। और साच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों, नकली ऋषियों और भय ऋषियों और संतों और सदगुरुओं पर ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे हैं। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण ये पढ़त है गीता। इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था नकलियों द्वारा।
और वो श्रद्धालु जैसे ही गुरुजी बताते हैं, बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहां चले गए। अब वहां पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वो वहां गए थे भक्त। अपने आत्माओं सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का युग, जहां पर इतने भगत मर गए हों, और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहां रहा करते थे, वो भी पुजारी थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं, आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है उसके विषय में दास जानकारी देगा। अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से। ये तीर्थ कैसे बने, दास ने बहुत बार आपको समझाया है और उनको आपने सुना भी है। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना। क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते हैं हमें, एक दास बन के अपने आप को एक भगत दिखा के। और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत्य ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हो, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता था, समर्पित था। साथ में हनुमान जी का पुजारी, शंकर भगवान का पुजारी, बाबा श्याम जी का पुजारी, जो परंपरागत पूजाएं थी। और मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा इस दास ने। सालासर एक धाम है चूरू जिला में, स्थान है मंदिर हनुमान जी का, वहां जाया करते। वहां पर इसी बूंदी सी मूर्ति रखी है जो पत्थर से की शकल ना उसकी कुछ भी कोई ना, और वहां माथा टेक टेक रगड़ रगड़ का हमने पत्थर घिसा दिए। अब हमें तो भगवान चाहिए था, आज पता चला वो लोकवेद था। और परमात्मा के प्यारे हंस सतगुरु मिले स्वामी रामदेवानंद जी, उन्होंने दास का अंधेरा हटा दिया और साथ में तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, बेटा इस चांदने में चलिए, रोशनी में भटकना मत मार्ग से। और जो घर में सुख हो रहे थे, उन साधनाओं के करते करते दास ने सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया, सर्विस प्राप्त की इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर, जूनियर इंजीनियर की। विवाह हुआ, 2 बेटे 2 बेटी हुई, बड़ी खुशी मनाई, और ये सोचा कि ये भगवान हनुमान और ये श्री कृष्ण और ये हमें सब कुछ दे रहे हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि हमें तो अपना केवल प्रारब्ध मिल रहा था, और जिन पूजाओं को हम कर रहे थे उनको करते करते हमारे साथी वहीं के वहीं पड़े, उनका कुछ भी ना हुआ। उनको क्यों नहीं लाभ मिला? ये आज आंखें खुली, वो जो तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। ये भी परमात्मा कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में चलेंगे हम, सीधे गड्ढों में नहीं गिरेंगे, झाड़ों में झंखाड़ों में नहीं फंसेंगे, यानी अज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। हम तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन भक्ति रूपी सफर तय करेंगे। तो अब आपको जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई? पुणात्मा, जैसा कि दास ने कथा सुनाई थी कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाना था, और उस पुल वो बना नहीं पा रहे थे, इसलिए समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के प्रार्थना की। 3 दिन जब नहीं माना, समुद्र तट से मस नहीं हुआ, तो उसने कहा भाई लक्ष्मण मुझे अब मेरा अग्नि बांध दे। और ये समुद्र इस अभिमानी रावण का संग पाकर ये अभिमानी हो गया, उसका पक्ष कर रहा है, ये रास्ता नहीं दे रहा मुझे। और उसने तीर दिखा के और उसको फूकना चाहा था अग्नि बाण से। उसी समय विपर रूप धारण करके आया था और प्रार्थना करी थी कि ऐसा काम करो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके हाथ में ये पावर है, उनके हाथ से पत्थर तर जाएंगे, आप ऐसा ना करो, मुझे ना फूको।
फिर नल नील के हाथ में शक्ति तो थी, लेकिन उस दिन उनमें भी अभिमान छा गया था। वह परमात्मा मुनिंदर जी की द्वारा दी हुई थी, कबीर साहब की दी हुई थी शक्ति, वह क्षीण होगी। फिर उनके दुख का निवारण करने के लिए स्वयं परमात्मा आए थे, मुनिंदर रूप में प्रकट थे, ऋषि मुनिंदर रूप में। तब वहां के पहाड़ को हल्का कर दिया था परमात्मा ने, एक रेखा खींच दी थी चारों तरफ, तब वो पुल बना था। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी चले गए, श्री कृष्ण के का तो नाश हो गया था, कुल नाश हो गया था श्री कृष्ण जी का, दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। पूरा यादव नर यादव कति खत्म हो गए थे। जो गर्भवती बहनें थी वो बची थी, वो संतान बच गई थी, वो तो गर्भ में थी। और श्री कृष्ण भी मारे गए थे तीर के माध्यम से। एक पारधी ने विषाक्त तीर मार दिया उनके पैर में। और वो कौन था? वो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी थे उस समय वो बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको श्री राम रूप में श्री विष्णु जी ने धोखे से मारा था वृक्ष की ओट लेकर। तब उससे कहा था कि मरते समय कि आप तो विधि विधान को जानने वाले हो, आपने मुझे धोखे से मारा है, आपने बदला देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था मैं द्वापर युग में आपका बदला दूंगा। तो वही बाली तो बना था पारधी शिकारी, और श्री कृष्ण श्री राम वाली आत्मा थी ही श्री विष्णु जी। तो उसके पैर में विषाक्त तीर मार के ऐसे ही धोखे से उनकी मृत्यु की थी। उसके बाद वो नगरी ज्यों की त्यों सुनसान पड़ी थी, और वहां यादव की जितनी पत्नियां थी उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ में आ गया था। रास्ते में कुछ भीड़ों ने लूट ली थी, कुछ उनके गहने लूट लिए थे। वो बहुत लंबी कहानी है, ये प्रसंग दूसरा है। और एक दिन उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहां बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्र दमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहां बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना, उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई, क्यों हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्र दमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया, और जाके कहा कि यहाँ भगवान पहुंचे, वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहाँ बताया था ये स्थान, मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की त्यों, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बनने को बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी। उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। कई बार आता उड़ीसा के अंदर तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिले मंदिरों उनको, मंजिलों को, मकानों को। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया,
और 4-5 बार समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा हूँ। दुष्ट दुर्भाग्य है मेरा कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे, मेरे पास मेरे गहने रखे कितने, मैं क्या करूंगी, आप इतनी चिंता करें और भगवान के दिए हुए इनसे करते। तो उसने सारे गहने बेच के और फिर शुरू किया। मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आ गए, क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं। परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया कि वो गोरखनाथ थे, एक सिद्ध पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की, बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा। उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने सौपन में मुझे मना किया था कि सौपन तो सौपन ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। लाल आँख कर ली। राजा डर गया, भाई कि देखा ये कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा, जी जैसे आपकी इच्छा, और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या अच्छा जी, अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाती। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो इन्हों कहेगा तू पहले नाटे था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देगा। राजा की नींद हराम होगी। उधर से मंदिर की चिंता, उधर से पर ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहाँ एक वृद्ध कारीगर, कति वृद्ध 86 वर्ष की आयु दिखा रहे हों, जैसे लीला करे, और कहा, राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूँ और मैंने बहुत से ऐसी लकड़ी चंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूँ, और मैंने सुना है कि यह मूर्तियाँ बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूंगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखा है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा, जी ठीक है, बनाओ, अभी मंगा देता हूँ चंदन की लकड़ियाँ। कहने लगा, मुझे एक कमरे में बंद कर दो, जब तक ये मूर्ति ना बन जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगा, वैसे नहीं बनेंगी ये मूर्तियाँ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सत साहिब जी। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਘਵੀਰ ਦਾਸ ਆ ਜੀ। ਰਘਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲੂ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਰਘਵੀਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਹੇ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ 'ਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਦੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਬੁੱਕ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, जीव जब हमारी जाति है, मानस धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दास ने जो देखा तो बहुत ज़्यादा मन नूं शांति जी मिली भी ये ज्ञान गंगा बुक दे विच कुछ ना कुछ है।
ਕੁਛ ਗੁੱਡ ਰਿਹਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ, ਕਰਨ ਭਗਤ ਜੀ ਆਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਧੂਰੀ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਭਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਜ, ਮੇਰੇ ਭਗਤਮਤੀ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸੱਤ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਜੀ ਸੱਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ? ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਏ ਸਰ ਜੀ। ਲਾਭ ਤਾਂ ਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੀਵਰ ਫੈਂਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਗੰਗਾ ਨਗਰੋਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਚਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਐਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੋਬ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਆ, ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋਬ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਭਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें